अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अगर तेलंगाना को गोदावरी का पानी न मिले तो इसके असर जिम्मेदार केसीआर और हरीश राव होंगे। चंद्रबाबू नायडू को भी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया चैलेंज। राहुल गांधी की 54वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पेश की मुबारकबाद। तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। साबिक क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन फिर एक बार किस्मत आजमाने तैयार। जुबली हिल्स से दोबारा ज़िमनी असेंबली इलेक्शन के लिए मैदान में उतरने का जाहिर किया इरादा। अवाम से मुलाकातें। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से दूसरी फ्लाइट भी पहुंच गई हिंदुस्तान। 110 तलबा के अलावा हिंदुस्तानी सफ़ीरों के अफराद ख़ानदान की वतन वापसी। तलबा ने किया मसरत का इजहार। ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक नई लहर के तौर पर जवाबी हमले किए। तल अवीव समेत 5 शहरों में मुख्तलिफ इमारात को पहुंचा सख्त नुकसान। फौजी मराकज़ को भी हमलों में बनाया गया निशाना। और गजा में जालिम इसराइल की दरिंदगी, नस्लकुशी और मुकम्मल तबाही की जंग जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 69 फ़लस्तीनी शहरी लुक़्मा अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। केसीआर और हरीश राव को सज़ा मिलना चाहिए अगर तेलंगाना को गोदावरी का पानी न मिले। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ये बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि मरकज़ की हुकूमत का आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू साथ दे रहे हैं, इसलिए मरकज़ पानी के मसाइल पर AP हुकूमत का साथ दे रहा है। उन्होंने बाबू को भी चैलेंज किया। రాయలసీమ పెన్నా బేసిన్ కి తరలిస్తున్నారు, ఇది మాకు తీరని అన్యాయము అని చెప్పి కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు మనకి న్యాయం జరుగుతుంది। ఈ రోజు అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, మీరు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, కేంద్రంలో మీకు పలుపాడి ఉండొచ్చు, మోడీ గారు మీరు ఏం చెప్తే అది వినొచ్చు, అంత మాత్రాన మీ ప్రాజెక్టులకు అన్ని అనుమతులు వస్తాయని మీరు అనుకుంటే అది భ్రమ। అట్లాంటి వాటికి అవకాశం లేదు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన ప్రణాళిక వ్యూహరచన స్పష్టంగా ఉన్నది। మేము ఈరోజు వివిధ రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలకు మేము ఫిర్యాదులు చేస్తున్నాము। రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలు మా హక్కులను కాపాడడానికి, మా హక్కులను మాకు అందించడానికి ముందుకు వస్తే సరే, లేకపోతే న్యాయస్థానానికి వెళ్తాం, అక్కడ కూడా జరగకపోతే ప్రజల దగ్గర పోతాము। అంతిమ నిర్ణేతలు ప్రజల దగ్గర కూడా వెళ్తాము। ఈ రోజు నేను వారికి రెండో సూచన చేస్తున్నా, ఈ రోజు 3000 TMCల మిగులు జలాలు గోదావరిలో ఉన్నాయి అని మీరు నమ్మితే, చంద్రశేఖరరావు చెప్పిండని కాదు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు నమ్మినప్పుడు గోదావరి బేసిన్ మీద తెలంగాణకు 968 TMCల నీటి కేటాయింపులు ఉన్నాయి। 518 TMCలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉంటే 968 TMCలు తెలంగాణకు అలొకేషన్ ఉన్నది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే। మా 968 TMCల వరకు తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు బ్లాంకెట్గా మీరు NOC ఇవ్వండి। మా తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు 968 TMCలకు వాడుకోవడానికి సంపూర్ణమైన అనుమతులు వచ్చిన తర్వాత మేము ఆ ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నాక ఇంకా నీళ్లు కిందికి పోతే అది వరద। పైన మా సమ్మక్క సారక్కకు అడ్డం పెడతారు, మా సీతారామకు అడ్డం పెడతారు, మా కాళేశ్వరంకి అడ్డం పెడతారు। గోదావరి బేసిన్ మీద మేము కట్టుకునే ప్రతి ప్రాజెక్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యంతరం పెట్టి ఆ ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రాకుండా ఆలస్యం చేసి ఇగో మిగులు జలాలు ఉన్నాయన్నాడు। మిగులు జలాలు ఎట్లున్నాయి? కేసీఆర్ దరిద్రం వల్ల, ఆకలి వల్ల, కేసీఆర్ తెలంగాణకు చేసిన ద్రోహం వల్ల నీళ్లు నీకు వరదొస్తున్నాయి। ఏందయా ద్రోహం? మేడిగడ్డ కూలిపోయింది, సుందీలు అక్కడికి రాలే, ఇక అన్నారం గురించి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు। అవే చక్కగా ఉంటే ఆ నీళ్లు మేము ఎత్తిపోసుకుని ఉంటే నీకు వస్తుండేనో రాకుంటుండేనో లెక్క తెలుస్తుండే। ఇవాళ వాళ్ళ ధనదాహం వల్ల, వాళ్ళ దోపిడీ వల్ల మేడిగడ్డ కుప్పగూలింది। ఏమవుతుందా, ఓ పిల్లర్ గుంగిపోతే ఏమవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ అంతుంది కదా అంటారు। హరీష్ రావు గారు, నీ గుండెకాయ ఊడబీక్తే నీకు తెలుస్తా, మొత్తం బాడెంత 6 అడుగులు ఉన్న గుండె తీసి పక్కకు పెట్టు, నువ్వు ఉంటావో లేదో చూద్దాం। ప్రాణహిత చేవెళ్ల గోదావరి జలాల మీద మేడిగడ్డ అనేది గుండెకాయే, ఆ గుండెనే లేకున్న తర్వాత तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने भी गोदावरी वंकाचला प्रोजेक्ट पर तशवीश का इजहार किया। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में उत्तम कुमार ने कहा कि तेलंगाना के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए मरकज़ की हुकूमत आंध्र प्रदेश हुकूमत की तायद में इक़दाम कर रही है, जिससे तेलंगाना के किसानों और रियासत के मफादात का नुकसान होगा। पोलवरम वंकाचला लिंक प्रोजेक्ट, इट्स एन इरिगेशन प्रोजेक्ट. We are worried that the government of India is processing the proposal of the Andhra government on a war footing without taking our interest into account. That is our water. That is detrimental to Telangana water rights, to Telangana farmers.
So today we called for an all-party meeting of all members of parliament. Tomorrow morning we are meeting the Central Water Resources Minister, and we are going to fight at all levels to protect the Telangana interest. What was the response from the MPs of all the other parties? All parties said they would come along with us on this issue. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की 54वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त खिराज पेश किया। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी बयान में राहुल गांधी के आईनी इक़दार, समाजी इंसाफ और कमज़ोर तबक़ात के लिए जिद्दोजहद की सताइश की गई। गांधी भवन में भी सजावट का एहतमाम किया गया। पार्टी लीडरों ने राहुल गांधी को मुबारकबाद दी। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने भी कहा कि मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की फलाह के लिए राहुल गांधी की खिदमात गैर मामूली हैं। Be a worker of Rahul Gandhi, and we are proud to be worker of Congress Party. राहुल गांधी जो देश की दिशा दशा बदलने वाला सोशल जस्टिस की मांग को उठा के तेलंगाना आज क्या सर्वे करने के बाद देश की यूनियन गवर्नमेंट भी क्या सर्विस करने के लिए फैसला लेके आगे जाने का जिम्मेदारी और रिस्पांसिबल पर्सन राहुल गांधी, उसका जन्मदिन में आज तेलंगाना कांग्रेस के तरफ से पूरे मुबारकबाद देते हुए आने वाला दिन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना है और देश में पिछड़े जाति SC ST BC माइनॉरिटी के लिए न्याय मिलना है और सोशल जस्टिस अमल होना है। यही कांग्रेस कार्यकर्ता का इच्छा है। इसी इच्छा के साथ आज राहुल गांधी का जन्मदिन जोरदार 100 फीट की यूथ कांग्रेस अनिल यादव के राज्यसभा मेंबर का नेतृत्व में लगा के हम जोरदार सेलिब्रेशन गांधी भवन में कर रहे हैं। हम सब लोगों की दुआ तेलंगाना की तरफ से दुआ देते हैं राहुल गांधी को ब्लेसिंग को आगे बढ़े और इस देश में एक सामाजिक न्याय। राहुल गांधी की सालगिरह की मुनासिबत से हैदराबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरमंत और दीगर कायदीन के हमरा MLC आमिर अली खान ने भी तकरीब में शिरकत की और तलबा और तालिबात में नोटबुक्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। साबिक क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दावा किया कि जुबली हिल्स हल्के से दोबारा ज़िमनी असम्बली इलेक्शन के दलिए में मैदान में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें काफ़ी मोहब्बत दी है और वो दोबारा इलेक्शन लड़कर असम्बली में इलाके की अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवाम से मुलाकातें भी दी और मीडिया से बातचीत की। यहाँ से लड़ूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से इतना प्यार और मोहब्बत मिला और मोहब्बत मिली लोगों की। अभी भी लोग भी यहाँ पे चाह रहे हैं कि मैं ही लड़ूँ और इंशाल्लाह मैं ही लड़ूंगा। और लोग यहाँ पे अभी से तैयारियां शुरू कर दी, तो काम करें। काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, छोटे मोटे जो बड़े प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे हो रहा है काम। हर एक जगह पे काम हो रहा है, ऐसा काम नहीं रुक रहा है। काम को जो SDF फंड है उससे काम हो रहा है, हर चीज हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग जो इतना प्यार और मोहब्बत है। हम जात में लास्ट टाइम उसका टाइम नहीं था, 12-13 दिन में हम लोग इतने वोट लाए हैं। बट इंशाल्लाह जरूर लगेंगे यहाँ से इंशाल्लाह कांग्रेस की सीट जरूर। I think there's not any doubt there. So inshallah, let us see, because the people of Jubilee are giving me a lot of love and affection. I think they've really worked very hard for me in the last election, and I'm sure that they will continue to work hard this time. And maybe inshallah we'll win the seat and we will take the seat back, and it's going to be a Congress seat this time. तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीसों की वसूली के खिलाफ कमिश्नर एंड डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन दफ्तर के रूबरू आज एहतजाज किया गया। आम आदमी पार्टी तेलंगाना यूनिट के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रेवंत रेड्डी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि एजुकेशन माफिया पर रोक लगाई जाए और हुकूमत भी तानाशाही का सिलसिला बंद कर दे। हमारा मुतालबा ये है, ये रेवंत सरकार एक जो धोखेबाज सरकार है और ये सरकार ने एजुकेशन माफिया को आगे बढ़ाया है और वो बैकडोर से जो सपोर्ट कर रही है वो सपोर्ट हटाते हुए और एजुकेशन माफिया के ऊपर रोक लगाना चाहिए। एजुकेशन इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बढ़ेगा तेलंगाना तो आगे बढ़ेगा तेलंगाना, ये नारे के साथ हम जो है रेवंत रेड्डी से, कांग्रेस हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि आप रेवंत रेड्डी जी, आप जो है एजुकेशन माफिया के ऊपर रोक लगाएं और रोक लगाकर ये साबित करें कि आप तेलंगाना के लिए हित के अंदर काम करने वाले हैं। आप तानाशाही की हुकूमत जो चला रहे हो, ये तानाशाही की हुकूमत ना चलाते हुए आज तेलंगाना की गरीब जनता, गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। जो जनता, जो आवाम ने आपको जिताया है।
तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने बशीराबाद मंडल में 150 सिलाई मशीनों की तकसीम की। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदों, मुतल्लिका हुक्काम के अलावा अवाम और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। BRS एमएलसी कविता ने कहा कि अगर तेलंगाना में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए बगैर बल्दी इंतखाबात मुनक़िद किए गए तो फैसला एक बड़े अवामी एहतजाज को जन्म देगा। उन्होंने कहा कि हर गाँव, पंचायत और वार्ड में सैकड़ों नामजदगियाँ दाखिल करके एहतजाज को तहरीक दी जाएगी। कविता प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि रियासती हुकूमत की कारकर्दगी, BC बिल पर हुकूमत और अपोजिशन की गफलत, आंध्रा वज़रा के तेलंगाना मुखालिफ बयानात और नलामला जंगलात पर मुजवज़ा प्रोजेक्ट समेत दीगर उमूर पर भी उन्होंने बयान दिया। रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि वह दिल्ली के सबसे ज़्यादा दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। జరుగుతుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గోదావరి నీళ్లను కృష్ణాకి, పెన్నాకి, కావేరికి అనుసంధానం చేసేటటువంటి ప్రాజెక్టు లింకేజ్ పాయింట్ తుపాకులగూడనే ఉండాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలందరి తరఫున కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ గవర్నమెంట్లో ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారి యొక్క ప్రాబల్యాన్ని వాడి వారు చాలా తెలివిగా ఇది గోదావరి కృష్ణా లింకేజ్ అని చెప్పకుండా గోదావరి కావేరి, గోదావరి పెన్నా లింకేజ్ అని చెప్పి 60% నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ ప్రాంతానికి లాభమయ్యే పనిచేస్తున్నారు. మన రేవంత్ రెడ్డి గారేమో ఫ్లైట్ మోడ్ సీఎంగా ఢిల్లీకి పోవడం రావడం తప్పితే కనీసం మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎట్లా నిధులు చేపట్టాలి, ఎట్లా తీసుకురావాలి, ఎట్లా తుపాకులగూడెం దగ్గరికి మార్చుకోవాలి ఈ పాయింట్నని మాట్లాడతలేరు. ఇంతవరకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు 1-2 లెక్కలు రాసిండ్రు కానీ ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతలేరు? వారికి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటిది? చంద్రబాబు నాయుడు గారితో వారికి ఉన్నటువంటి లాలూచి ఏంది ఖచ్చితంగా చెప్పాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మొన్న జూన్ 2 నాడు ప్రీ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ అనేటటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని కేంద్రం ఒప్పుకోవడం కూడా జరిగింది. ఆల్రెడీ మనకు నష్టం జరగడం ప్రారంభమైంది. అయినా కూడా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించకపోవడం నిజంగా దుర్మార్గం. ఇది కేవలం తెలంగాణకు ఆయన చేసేటటువంటి ద్రోహం తప్ప ఇంకోటి కాదని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। वो 20 और 21 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले बावक़ार ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम के इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मौजूद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ है। KTR इस मौके पर तेलंगाना में गैर मुल्की सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। प्रोग्राम दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, असातिज़ा, सनतकारों, पॉलिसी साज़ों की शिरकत के साथ मुनक़िद होगा, जहाँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हिंदुस्तान में पायदार तरक्की के इम्कानात पर गुफ्तगू होगी। KTR 24 जून को हैदराबाद वापस हो जाएंगे। रज़ाकार फिल्म को गदर अवार्ड देने के फैसले पर APCR ने गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया है। APCR ने मुख्तलिफ तंजीमों और समाजी कायदीन के साथ एक मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद हैदराबाद में अमल में लाया और फैसले की मज़म्मत की। प्रोफेसर अनवर खान और ईसाइयों के रियासती सदर फराज अहमद के अलावा सारा मैथ्यूज़ ने भी कहा कि BJP इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए अक़लियती तबक़े का इस्तेहसाल कर रही है। आइए देखते हैं चंद अहम कायदीन के बयानात। And he said, of course, he said very bravely that he will face arrest, etc., etc. Of course, his supporters protested within Telangana Bhavan, which is a private property, a party's property. The police came in there and locked up Telangana Bhavan. People went from there to Nilofer Cafe across the road. Okay? Now there are other people like you and me who love Nilofer chai and maska, bun maska. They were sitting there as well. The police went in over there. Again, that's private property. Chased away everyone, including innocent, people who were just enjoying a cup of tea. They banged their lathis on the chairs and made them get up and go from there. And then they pulled down the shutters of Nilofer Cafe. What is this government? Telangana government is nothing but a fascist government. I am not premature in saying that. If you can treat a political party like this, you and I are not safe. We are ordinary citizens. I'm not talking in favor of any party, but we are talking about rights. Rights are everyone's rights. It is not exclusive to a certain group. So, the time for talking is over. I always say hit the roads. This government is not safe, not with Revanth Reddy heading it here. सोच कर ही हम गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था।
हमने फिल्म सर्टिफिकेशन को सेंसर बोर्ड की चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि ये पता था जो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन देकर ए सर्टिफाई करके भेजती है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो इसको रिकंसिडर करे या रोके। तो हम सीधे कोर्ट चले गए थे अपनी पिल लेकर कि रजाकार की रिलीज पर स्टे दी जाए। हमने कोर्ट को प्रे किया था कि वो रजाकार की रिलीज पर स्टे दे। दूसरी चीज़ ये कि एक अमाइकस क्यूरे अपॉइंट करे, देखे कि ये फिल्म कैसी है और किस तरह का कम्युनल डिसहार्मनी को फैलाती है। अब नतीजतन ये हुआ, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, जो प्रोड्यूसर इसके पीछे हैं गुदुर नारायण रेड्डी, वो खुद बीजेपी और आरएसएस के सीधे उसका हिस्सा है। समाज को एकजुट बांधे रखना, समाज में आपसी हमाहंगी पैदा होना, अगर कहीं कोई नफरत का पहलू होता है तो वो दूर होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, गलतफहमियाँ दूर होना, ये बहुत बड़ा रोल होता है स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले फिल्मों पर। तो बड़ी अच्छी बात है, एक ज़रिया है ये मॉडर्न दौर में, जदीद दौर में, कि इतने बड़े समाज को, इतना कॉम्प्लिकेटेड समाज को मुत्तहिदा रखने में मालूम होता है। బయటకు వచ్చి బహిరంగంగానే వ్యతిరేకించాం, అసలు ఆ పేరే ఈ అవార్డులో పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి వ్యతిరేకించాం. సరే, గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ప్రయారిటీస్, వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉండటంతో ఎవరు చెప్పినా కానీ వినకుండా ఆ గద్దర్ అవార్డు అని పెట్టారు. సరే, పెట్టిన తర్వాత ఇలాంటి పరిణామాలు ఏర్పడతాయని మనకు ముందే తెలుసు. అంటే రేపు ఎలాంటి సినిమాలకు ఇస్తారనేది అది ముందు నుంచి ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఉన్నది. దాని ఫలితమే ఇవాళ ఇలాంటి సినిమాలకు అవార్డులు ఇవ్వటం. అయితే ఎందుకు ఇట్లాంటి సినిమాలకు అవార్డులు ఇచ్చారు అంటే, బాలీవుడ్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడో మొదలుపెట్టింది ఇది. అంటే కేరళ ఫైల్స్, కాశ్మీర్ ఫైల్స్, చావా లాంటి చరిత్రను వక్రీకరించే సినిమాలతో మొదలుపెట్టి అది నిత్యం అది ఒక పరంపరగా అది కొనసాగిస్తూ ఉంది. को कम्युनल रंग में बताने का एक ख़तरनाक गेम बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। ये बीजेपी की ये तारीख रही है कि वो हिस्ट्री को कम्युनल लाइंस पर डिस्टॉर्ट करने और उसको चेंज करने की पूरी कोशिश करती है, और वो उसके लिए बहुत सारे काम भी कर रही है। और उसके लिए इसको पेश करने का जो बेहतरीन रास्ता है वो सिनेमा है। तो आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जानिब से इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है और अलग अलग तरीक़े से कम्युनल लाइंस पर फिल्म्स बनाए जा रहे हैं। उसको आज़ादी के साथ आज़ादी भी दी जा रही है कि वो उसकी सेंसरशिप नहीं होती है, और पूरी आज़ादी के साथ कम्युनल लाइंस पर उन फिल्मों को पेश करने का उनको पूरा मौका मिल रहा है। वरंगल मगरबी असम्बली हल्के के एमएलए एन राजेंद्र रेड्डी की जानिब से आज एमएलए कैंप ऑफिस में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर राजेंद्र रेड्डी ने 65 मुस्तहिक़ अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जबकि वरंगल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली 5 दुल्हनों को कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत इमदादी चेक दिए गए। इस तकरीब में अवामी नुमाइंदों, मुकामी कायदीन और मुस्तफ़ीद होने वालों के अफराद ख़ानदान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एमएलए ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब और ज़रूरतमंद अवाम की खिदमत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానివ్వండి, ఆరోగ్యశ్రీ కానివ్వండి, ఏ చెక్స్ కూడా అప్లై చేసిన వారం 10 రోజుల్లోనే చేరాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ప్రతి 15 రోజులకోసారి చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమము మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత 15 రోజులలోనే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ జరగనటువంటి, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగనటువంటి విధానం ఇది. ఎందుకంటే ఇవి అప్లై చేసేదే పేదలు కాబట్టి మీరు తీసుకున్నట్టమే కాకుండా దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉన్నా అప్లై చేసుకోవడానికి వారిని ఇక్కడికి ఆఫీస్లో ఎప్పటికీ అవైలబిలిటీ ఉంటారో, కాబట్టి వారిని కూడా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు, ఈ ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా అప్లై చేసుకుంటే వారికి తప్పకుండా వస్తుందనే మెసేజ్ని మీరు మిగతా వారికి కూడా ఇవ్వవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తారు.
शहरियों को हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले डबल बेडरूम फ्लैट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाने वाले ग्रुप को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और बंडलागुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करते हुए बेनकाब किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजिमीन के कब्जे से लगभग 5,50,000 रुपए नकद रकम और डबल बेडरूम स्कीम की 11 फर्जी दस्तावेजात भी बरामद कर ली और सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस को शुबा है कि इस ग्रुप से मजीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं। पुलिस हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। टास्क फोर्स टीम और बंडलागुड़ा पुलिस दोनों मिला के एक डबल बेडरूम फ्लैट्स दिलाने वाले चीटिंग करके लोगों से पैसे वसूली करने वाले गैंग को पकड़ा है। तो इसमें क्या है कि 4 लोग हैं। मेन एक्यूज इसमें मुख्य एक्यूज है कि मोहम्मद अहमद बोल के है, वो और उसका रिश्तेदार है मुनावर बोल के, ये दोनों मेन है। ये अहमद एक एसी टेक्नीशियन है और इलेक्ट्रिशियन भी है। तो ये क्या करता है कि एक जनरली ये टेक्नीशियन एसी फिटिंग वो सब करता है। इसलिए एक बार इसने वो बंडलागुड़ा में डबल बेडरूम हाउसेस कंस्ट्रक्शन साइट को गया था, तो वहाँ पर भी शायद ये एसी का ज़रूरत होगा बोल के वहाँ पर उसको ये राजू नाम का मतलब राजकुमार रेड्डी है, उसका परिचय हुआ, उससे मुलाकात हुए के बाद दोनों के बीच फ्रेंडशिप बड़ा हुआ। तो तभी इन लोगों ने थोड़ा एक प्लान हैच किया कि लोगों को ऐसे डबल बेडरूम दिलाते बोल के उनसे पैसे वसूली करेंगे बोल के। इसलिए क्या है कि मैक्सिमम इसने अपने रिश्तेदारों को ही बताया था, अहमद और मुनावर ने, कि ऐसे डबल बेडरूम फ्लैट्स हम दिलाएंगे बोल के। इस प्रकार से उन्होंने क्या है कि सभी लोगों से 50,000 से 1,70,000 और 2 लाख तक पैसे ले लेते रहे थे। और उनको भरोसा दिलाने के लिए, उनको यकीन दिलाने के लिए क्या कहते थे कि ये अहमद ने एक ओरिजिनल अलॉटमेंट ऑर्डर कॉपी लिया था, उसको इसने एक ऐप यूज़ करके, पिक्सैट ऐप बोलते हैं, हमारे प्रेस नोट में भी है, उस ऐप के ज़रिए से ये क्या किया कि ये जो ऑर्डर है, ओरिजिनल ऑर्डर पे जो डिटेल्स रहता था वो सबको एरेज करके, मतलब डेट, नेम, एज कैटेगरी, आधार नंबर, पूरे अदर डिटेल्स, इवन फोटोग्राफ, वो सब एरेज करके ये अपने डिटेल्स। शहर हैदराबाद के मादापुर इलाके में एक सानिहा पेशा है। मुबैना तौर पर सॉफ्टवेयर मुलाजिम ने दुर्गम चेरू के पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। मुतवफ़ी की शनाख्त सुषमा 27 साल के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक सिकंदराबाद की रहने वाली सुषमा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिम थी। अहलखाना ने बताया कि वो 18 जून को हाईटेक सिटी में अपने दफ्तर गई, ताहम शाम को वापस नहीं आई। परेशान घर वालों ने तलाशी की लेकिन न मिली। मादापुर इंस्पेक्टर डी कृष्णा मोहन ने कहा कि सुबह 7 बजे के करीब एक खातून की लाश झील में तैरती हुई मिली। माहिर तैराकों की मदद से लाश को निकाला गया और इसकी शनाख्त सुषमा के तौर पर की गई है। शुबा है कि उन्होंने झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। गुजरात में अफसोसनाक तैयारा हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया। एयरलाइंस ने कहा कि वो 20 जून से अपने वाइड बॉडी हथियारों से चलने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में 15% कटौती कर देगी। ये फैसला जुलाई के वस्त तक नाफिज रहेगा। एयर इंडिया के मुताबिक यह कदम तैयारों की रिजर्व दस्तियाबी बढ़ाने के लिए किया गया ताकि मुस्तक़बिल में किसी भी तकनीकी या तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े मसले का हल निकाला जा सके। इसका मकसद ऑपरेशन में इस्तेहकाम रखना, मुसाफिरों को बेहतर खदमात फराहम करना और गैर ज़रूरी अदम सहूलतों से बचाना है। एयर इंडिया ने कहा कि 20 जून से नाफिज होने वाला बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग की वजह से दोनों ममालिक में फंसे दीगर ममालिक के बाशिंदे जल्द से जल्द अपने वतन वापस होने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। इस दौरान आज जुमेरात को हिंदुस्तानी बाशिंदों को लेकर दूसरी फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। हुकूमत ने हिंदुस्तानी अफराद की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसके तहत तेहरान से निकाले गए 110 हिंदुस्तानी तलबा को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसके चंद घंटों बाद मजीद एक तैयारा पहुंचा जिसमें ईरान में मुक़ीम हिंदुस्तानी सफ़ीर और उनके अरकान ख़ानदान भी शामिल हैं। वतन वापस होने वालों ने इत्मीनान का इजहार किया है। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके, कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर वापस आके? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर वालों से मिलेंगे। अभी रोज़ बरोज़ जो है
हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं, हमें पहले उर्मिया से हमें स्टूडेंट्स उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। जी ये उर्मिया यूनिवर्सिटी। हाँ, तेहरान में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी आप लोगों को, वहाँ पे आप थे, क्या मिल रही थी, और वहाँ की अथॉरिटीज़ आप लोगों से क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी इस पूरे जंग के हालात में? They are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. तो रूट क्या रहा, कैसे आया, अगर उसके आप पूरा प्रोसेस बता सकें? रूट हमारा उर्मिया से पहले अर्मेनिस्तान आए बाय बस, देन आफ्टर दैट वी स्टेड देयर फॉर अराउंड 4-5 hours. There was a process on the border. After that we had a flight from Armenistan to Qatar, and from Qatar we are here. मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएँ, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का कोई नहीं, क्या दिक्कतें हैं? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? ईरानियों का, ईरानियंस का। उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचे जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। आज वापस आ रहे हैं वहाँ से, कैसा लग रहा है? कितनी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज, और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। क्या हालात थे वहाँ पे, कैसा हालात? वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी। इसराइल के बदतरीन हमलों की वजह से ईरान में हुए जानी नुकसानात पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना यूनिट ने ईरान के अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार किया, और सिलसिले में एसआईओ के जनरल सेक्रेटरी अनिस रहमान, रियासती सदर मोहम्मद फराज अहमद, सेक्रेटरी हाफिज हम्मादुद्दीन ने कौंसल जनरल ईरान मेहदी शाहरुखी से मुलाकात की और तंजीम की जानिब से एक जहती का पैगाम पहुँचाया। वफ्द के ज़िम्मेदारान ने कहा कि एसआईओ इन सख्त हालात में ईरानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है, और तमाम मुतासर अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार किया जाता है। वफ़द ने एहसास ज़ाहिर किया कि हालिया दिनों में ईरान की सरजमीन पर हुए इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों और सिफारती ज़ाब्तों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। एसआईओ तेलंगाना के रियासती सदर मोहम्मद फराज ने कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है कि हिंदुस्तानी हुकूमत तेहरान में अपने सिफारती मिशन के ज़रिए तलबा की सलामती के लिए तमाम तर ज़रूरी कदम उठाएगी। और आज ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक नई लहर के तौर पर जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए। 5 मुकामात तल अबीब समेत जिन पर हमले गिरे हैं और इमारतों पर शदीद नुकसान पहुंचा। फौजी मराकज़ को भी इन हमलों का निशाना बनाया गया। माहिरीन का कहना है कि मुतादिद अफराद इसमें हालांकि ज़ख्मी हो सकते हैं, ताहम कम से कम 20 से 35 अफराद की इत्तला अभी तक सामने आई है। चंद अफराद ज़ख्मी भी हुए। हमले इसराइल की जानिब से जारी ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर फ़िज़ाई कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं। ईरान इसराइल तसादुम 7वें दिन में दाखिल हो गया। ईरानी मिसाइल इसराइल के मरकज़ी हस्पताल सुरुका मेडिकल सेंटर पर भी गिरा। यह अस्पताल इसराइल के जनूबी हिस्से का सबसे बड़ा तिब्बी मरकज़ है। इस दौरान आलमी बरादरी ने सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखा है ताकि इस जंग को रुकवाया जा सके। और इस दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनाई ने अमेरिकी सदर ट्रंप के सरेंडर करने की धमकी पर जवाब देते हुए कहा कि ईरान हरगिज़ सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार न डाले तो ईरानी सुप्रीम लीडर को ख़त्म किया जा सकता है, जिसके जवाब में खामेनाई ने कहा कि अगर अमेरिका ने अपने इत्तेहादी की मदद के लिए मुदाखलत की तो इससे भारी नुकसान होगा। अपनी तकरीर में खामेनाई ने कहा कि हमारी कौम हथियार नहीं डालेगी। उन्होंने ट्रंप के अल्टीमेटम को नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि किसी भी फौजी मुदाखलत का बिलाशुबा उसे नाकाबिल
इनकलाफी नुकसान होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई 1979 से इक़्तिदार में हैं। आइए देखते हैं उनका आज का ये मुख्तसर सा बयान। मैं ईरान के महान और गौरवशाली राष्ट्र का अभिवादन करता हूँ। पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वह है इस मामले में हमारे प्रिय राष्ट्र के व्यवहार की प्रशंसा करना, जिसे दुश्मनों ने हाल ही में देश के सामने लाया है। ईरानी राष्ट्र ने दिखा दिया है कि वह दृढ़, साहसी और समयनिष्ठ है। गदीर के दिन लोगों ने दुनिया को जो महान आंदोलन दिखाया वह एक महान आंदोलन था। इन चंद दिनों में लोगों का जुलूस, जुमे की नमाज में उनकी मौजूदगी और नमाज के बाद उनका जुलूस, यह सब ईरानी राष्ट्र की वृद्धि और हमारे प्यारे राष्ट्र में साहस और समय की पाबंदी के साथ साथ तर्कशीलता और आध्यात्मिकता की ताकत को दर्शाता है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से उसने इस आस्तिक राष्ट्र को आध्यात्मिक और भौतिक क्षमताओं और संभावनाओं के इस स्तर पर रखा है। मैं यहाँ उस खूबसूरत और सार्थक इशारे का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ जो टीवी प्रस्तोता ने दुश्मन के हमले के जवाब में किया। तकबीर कहना और वास्तव में राष्ट्र की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, यह एक ऐतिहासिक घटना थी, एक बहुत ही मूल्यवान घटना। दूसरी बात यह है कि यह घटना जायोनी शासन द्वारा हमारे देश पर मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आक्रमण की घटना उस समय हुई जब सरकारी अधिकारी अमेरिकी पक्ष के साथ अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे। ईरान की ओर से कोई मुद्दा नहीं था जो यह संकेत देता कि कोई सैन्य कदम या कठोर और सख्त कदम उठाया गया था। बेशक शुरू से ही यह संदेह था कि झायोनी शासन के इस दुर्भावनापूर्ण कदम में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन हाल ही में उनके द्वारा दिए गए इन बयानों से यह संदेह दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है, जैसा कि वह अब तक खड़ा रहा है, और थोपी गई शांति के खिलाफ भी दृढ़ है। ईरानी राष्ट्र किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धिजीवी और लेखक, विशेष रूप से दुनिया के जनमत से जुड़े लोग, इन अर्थों और अवधारणाओं को व्यक्त करेंगे, उन्हें समझाएंगे, दर्शकों के लिए उन्हें स्पष्ट करेंगे और दुश्मन को अपने भ्रामक प्रचार के साथ सच्चाई को विकृत करने की अनुमति नहीं देंगे। जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है। और अब बात फ़लस्तीन की। गज़ा में क़ाब इसराइल की दरिंदगी, नस्ल कुशी और मुकम्मल तबाही की जंग को आज 622 दिन मुकम्मल हो गए। ज़ालिम इसराइल को अमेरिका की तायीद हासिल है। दर्जनों फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले आज भी जारी रहे, जिनमें कम से कम 69 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं, जिनमें 29 फाक़ा कशी के मारे नामनहाद इमदादी मराकज़ के करीब खड़े थे और उन पर भी ज़ालिम इसराइल ने बेदर्दी से हमले किए हैं। गज़ा के वस्ती और जुनूबी इलाकों में दोबारा ज़मीन पर मबनी फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट की खदमात भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई हैं। ये नौबत क़ाबिल इसराइल की वहशियाना जारहियत की वजह से पेश आई, जिसने सर्विस फराहम करने वाले अहम रास्ते को तबाह कर दिया। फ़लस्तीनी इत्तिसालात के निज़ाम को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी ने कहा है कि वो इस मसले पर तवज्जो दे रही है और ख़िदमात फराहम करने वाली कंपनियों के साथ राब्ते में है, ताकि टेक्निकल सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और जल्द से जल्द राब्ते बहाल हों। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी इंटरनेट और ज़मीन से मुंसलिक फ़ोन सर्विसेज 5 दिनों तक गज़ा में मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र।
अगर तेलंगाना को गोदावरी का पानी न मिले तो इसके असर जिम्मेदार केसीआर और हरीश राव होंगे। चंद्रबाबू नायडू को भी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने किया चैलेंज। राहुल गांधी की 54वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पेश की मुबारकबाद। तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। साबिक क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन फिर एक बार किस्मत आजमाने तैयार। जुबली हिल्स से दोबारा ज़िमनी असेंबली इलेक्शन के लिए मैदान में उतरने का जाहिर किया इरादा। अवाम से मुलाकातें। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से दूसरी फ्लाइट भी पहुंच गई हिंदुस्तान। 110 तलबा के अलावा हिंदुस्तानी सफ़ीरों के अफराद ख़ानदान की वतन वापसी। तलबा ने किया मसरत का इजहार। ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक नई लहर के तौर पर जवाबी हमले किए। तल अवीव समेत 5 शहरों में मुख्तलिफ इमारात को पहुंचा सख्त नुकसान। फौजी मराकज़ को भी हमलों में बनाया गया निशाना। और गजा में जालिम इसराइल की दरिंदगी, नस्लकुशी और मुकम्मल तबाही की जंग जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 69 फ़लस्तीनी शहरी लुक़्मा अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।